Good morning, students. You are welcome on the platform of NPS family. So now today we are going to study about the nutrition in plants. This is the first chapter of your class, I mean 7th standard, nutrition in plants. Here there are various kinds of terms which we will go through in future study. So first, the name of lesson is nutrition in plants. Nutrition in plants. What do you mean by the nutrition? So all these terms we will learn about all these terms in this lesson. So first we start from the first line. All the living organisms, plants and animals, both plants and animals belongs from living organisms, require food. Is it clear? Plants and animals, both these are living organisms, and these both require food, because without food they cannot live. They damaged or they diminished without food, so they required food to get energy. Next, the organisms need to take food. The organisms need to take food first to obtain energy, second to obtain materials for growth, third to obtain materials for the repair of damaged parts of the body. So these are three essential things to require food. Why we require food? Why we require food? So these are three things to require food. For obtaining food, these are three things. To accomplish these three things, we require food. Number one, to obtain energy, because without energy we can't live. So first thing is to get energy, we take food. Second thing, to obtain materials for growth. Second thing, this is the second essential things, to obtain materials for growth. Third things, to obtain materials for the repair of the damaged parts of the body. For example, if you have some in your body, you have some parts, some damaged parts in your body, so you need food to repair these particular damaged parts of your body. So you have to get food. Is it clear? After obtaining food, you can get energy from the particular food, and your damaged parts will recover instantly. So the third thing is to obtain materials for the repair of the damaged parts of the body. Is it clear? So these three things, first, second and third, these three things are the applications of the food. So here a question is arise. Question. Now you can note down the question. Question first. Why we require food? Why we require food? Is it clear? Why we require food? हमें भोजन की क्यों ज़रूरत है? Answer. So these 3 points are the answer of this question. First point is to obtain energy. Yeah, to get energy. This is the first point. First point, to get energy. Second point, to obtain materials for growth. This is the second point. Third point, to obtain materials for the repair of the damaged parts of the body. So from here to here, this is the answer of this question. This is the answer of this question. Is it clear? So now next line, the process of taking food by an organisms as well as the utilization of this food by the organisms is called nutrition. Now second question is, what is nutrition?
So the name of chapter is nutrition in plants. So you should know about the nutrition first of all. So second question, define nutrition. Define nutrition. So the process of taking food by an organisms as well as the utilization of this food by the organisms is called nutrition. This is simple definition. You can write from this point to from this word to this word. You can write the answer of this question. Define nutrition. Answer is this. Is it clear? The process of taking food by organisms as well as the utilization of this food by the organisms is called nutrition. It means कोई प्राणी है वो भोजन ले रहा है, उसका लेने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, और उस भोजन को लेने के बाद उसके शरीर के जो पार्ट्स हैं वो किस तरह उसका उस भोजन को वो प्राणी किस तरह उसको यूटिलाइज़ कर रहा है, यानी उसको किस तरह इस्तेमाल कर रहा है अपने शरीर के लिए किस तरह उसका उपयोग कर रहा है उस भोजन का. सो ये डेफिनेशन है न्यूट्रिशन की. फिर मैं दोबारा आपको बता देता हूँ. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड मतलब भोजन लेने की जो प्रक्रिया है, भोजन लेने का जो प्रोसेस है, बाय एन ऑर्गेनिजम्स, कोई भी प्राणी, ऑर्गेनिजम्स में कोई प्राणी है उसका भोजन लेने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, एज वेल एज भोजन उसने ले लिया, प्राप्त कर लिया, उसके बाद एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फूड एंड उस भोजन का इस्तेमाल उसके जो बॉडी के जो पार्ट्स होंगे बाय द ऑर्गेनिजम्स या जो प्राणी है वो किस तरह उस भोजन का इस्तेमाल करेगा, वो पूरा प्रोसेस कहलाएगा न्यूट्रिशन. इज इट क्लियर? सेकेंड, प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स कैन नॉट मेक फूड देमसेल्फ. सिंपल, प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, प्लांट्स अपने आप अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं. ऑटोट्रॉप्स होते हैं जिनको हम ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरी में रखते हैं प्लांट्स को. बट जो ह्यूमंस हैं और एनिमल्स हैं, बहुत से एनिमल्स कैन नॉट मेक फूड देमसेल्फ, वो अपने आप भोजन नहीं बना सकते. सो वो सेकंड कैटेगरी में जाते हैं. सेकंड कैटेगरी जो होती है हेटरोट्रॉप्स की जो कैटेगरी होती है उसमें जाते हैं. दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम द प्लांट्स और अदर एनिमल्स. वो या तो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए या दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए. दस ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. यानी जो ह्यूमंस हैं, जो एनिमल्स हैं, वो डिपेंड करते हैं यानी आधारित हैं. किस पर हैं? वो प्लांट्स पर हैं या प्लांट्स पर डिपेंड करेंगे अपने भोजन के लिए, फूड्स के लिए. डायरेक्टली डिपेंड करेंगे या इनडायरेक्टली. डायरेक्टली मीन्स कैसे? मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको. डायरेक्टली क्या होता है कि सीधा आप फ्रूट्स इस्तेमाल कर रहे हो किसी प्लांट्स के, या वेजिटेबल इस्तेमाल कर रहे हो आप किसी प्लांट्स का, सीधा आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो डायरेक्टली यूज़ कर रहे हो फूड्स को. इनडायरेक्टली मीन्स किसी दूसरे एनिमल्स के थ्रू आप अपना भोजन प्राप्त कर रहे हो. एक एनिमल्स है, दूसरे एनिमल्स के थ्रू अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, वो इनडायरेक्टली हो गया. वी विल नाउ डिस्कस द वेरियस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स. अब हम प्राणियों के अंदर जो डिफरेंट मोड्स होते हैं, मोड्स मीन्स जो वेज तरीके होते हैं न्यूट्रिशन के, वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. अलग अलग जो बहुत सारे टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं इस वर्ल्ड्स के अंदर. यूनिवर्स में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका क्या प्रोसेस है न्यूट्रिशन का, वो सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर. सेकंड टॉपिक हमारा है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. द मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड आर कॉल्ड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. सिंपल सी डेफिनेशन है. द मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग, प्राप्त करने का जो तरीका है, किसको प्राप्त करने का? फूड्स को प्राप्त करने का, भोजन को प्राप्त करने का जो तरीका है, आर कॉल्ड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. उसको ही क्या कहते हैं? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. अब क्वेश्चन लिख सकते हो, डिफाइन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. व्हाट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या होता है? थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. Define modes of nutrition.
तो ये आप यहाँ से लिख सकते हो, द मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड आर कॉल्ड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. दिस इज वन लाइन आंसर. ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑल द ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स. यानी उनके मेथड्स पे, मोड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड्स के मेथड्स पे, किस तरह से वो भोजन को प्राप्त करते हैं प्राणी, उनको दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर रहे थे. फर्स्ट कैटेगरी ऑटोट्रॉप्स, जो मैंने बताया अभी. सेकंड कैटेगरी हेटरोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉप्स या ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉप्स या हेटरोट्रॉपिक. तो ये दो सिंपल कैटेगरीज हैं जिनमें हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया. तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ. जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो प्लांट्स हैं सारे, जो ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन प्लांट्स हैं, सारे ऑटोट्रॉप्स हैं. सेकंड जो है वो हेटरोट्रॉप्स में एनिमल्स आएंगे, ह्यूमन बींग्स में, वो सारी कैटेगरीज के अंदर, इसके अंदर आएंगे. तो हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें इनकी हम डिटेल से बात करेंगे. सो फॉर टुडे दिस इज़ एनफ. सो रीड केयरफुली एंड स्टडी and check yourself. Thank you.